So class, good morning. And as we know that we are discussing the quantum numbers, and the quantum numbers will be quantum numbers is totally completed now. And after quantum numbers, we have a topic which called the filling of electron in different subshell, yeah, different orbitals. Clear? So in this section, we have the first rule of filling electron, which called Above rule. Clear? This Above rule is state that the simple one things it says that means the filling of electron, filling of electron is according to their increasing order of energy. Clear? That means above rule state that the filling of electron is according to their increasing order of energies. That means अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने वाले हैं तो किसी ऑर्बिटल में, तो आप क्या करेंगे, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे उस सबशेल में करेंगे. ठीक है. एंड वी नो दैट हमने पढ़े थे ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, एसपीडीएफ. ठीक है. अब वो एसपीडीएफ जो आपके पास ऑर्बिटल हैं उनकी जो एनर्जी का लेवल है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो आपका ये होता है. दैट मीन सबसे लोअर एनर्जी का स्टेट होता है आपके पास द 1s. ठीक है. 1s के पास क्या होगा, सबसे लोअर एनर्जी होगा. दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज. ठीक है. दैट मीन द 1s, 2s, 2p, अगेन यू हैव द 3s, 3p, 4s, आफ्टर 4s you have the 3d, 4p, 5s, and then increasing order is goes to 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, and then again you have the increasing order 5f, 6d, and the 7p, and this series will be proceed further till all the electrons are not filled in your orbitals. Clear? So this is your simple rules called Above rules. ठीक है. हम क्या कर रहे हैं, आपका सिंपली इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर रहे हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर. ठीक है. अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करने के लिए हमें क्या दिए गए, कुछ रूल्स दिए गए, एंड वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स. ठीक है. रूल्स हमें फॉलो करना ही पड़ेगा. तो फर्स्ट रूल आपके पास था अबव रूल. ठीक है. अबव रूल ये बोलता है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे किसी ऑर्बिटल के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे वो अकॉर्डिंग टू करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑर्बिटल्स या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स. ठीक है. उन एनर्जी लेवल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे. ठीक है. दैट मीन सबसे लोअर स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट. क्लियर? एंड दिस इज योर increasing order of energy state. Clear? So this is your first rule called Above rule. Clear? After Above rule you have the Pauli exclusion principle. Okay, I'm writing here in the same board. Okay, after completing the all four quantum, all three rules, we will try to write the electronic configuration of different elements. Clear? So second you have Pauli's exclusions principle. Clear? After that you have the Pauli exclusion principle. ठीक. अब Pauli's के अंदर क्या आएगा, the same thing is that here first of all क्या था आपके पास, the energy level. ठीक है. That means the increasing order of energy level. ठीक है. In Pauli exclusion principle, you have the one thing that it states that no electron, no two electron have same set of all four quantum numbers. That means Pauli said that no two electrons have the same set of all four quantum number. Clear? That means we have the four quantum number: the principal, the azimuthal, the magnetic, and the
स्पिन क्वांटम नंबर, दैट मीन अगर आप किसी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन 4 क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे होंगे तो दैट मीन दे कैन नॉट बी इक्वल, दैट मीन no two electrons have the same set of all 4 quantum numbers. That mean अगर आपके पास 3 quantum numbers same हो जाएंगे then the fourth one will be different. How? Suppose you have examples 6s1 and 6s2. Okay? You are going to find out the set of quantum numbers for these two. ठीक है? That means the 6s1 you have here, we know that, and the principal quantum number is this one, that is the 6. Clear? After n you have L. You have L. Now see that you have the s orbital, and we know that the value of L for s orbital is 0. ठीक है? Is 0, and obviously M magnetic is also 0. And what about the S? S in the case of this one, because see that for s orbital you have only one electron, ठीक है. और लास्ट हमने कहा था स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर जब भी आप स्पिन क्वांटम नंबर दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, या तो पैरेलल जाएगा या फिर एंटी पैरेलल जाएगा. ठीक है, डिपेंड ऑन यू. ठीक है, आदर यू चूज द फर्स्ट +1/2 या -1/2. क्लियर? सो हियर S इज +1/2. ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास है. और पहले भी बात किया था कि जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है. ठीक है, और जो s ऑर्बिटल का आपका शेप होता है, दिस इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल. दिस इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर सेकंड इलेक्ट्रॉन. दैट मीन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन एंटी पैरेलल. दैट मीन वन इज द अपवर्ड, वन इज द डाउनवर्ड. दिस अपवर्ड हैव द वैल्यू +1/2 and this downward have value -1/2, and overall we know that the spin is 0. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना आएगा, 0 आ जाएगा in any one orbital. ठीक है, so same manner here is S is +1/2. Now see here in the case of 6s2, same, n equal to 6, n equal to 0, m again you have 0, and S we know that now it has the 2 electron, so electron first, second. So we are talking about this second electron, that means the -1/2. So you are seeing clearly here the all 3 quantum numbers are the same, but the 4th spin quantum numbers is different. That means state that it fulfilling this rule, that means no 2 electrons have सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर. ठीक है, ये था आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ सी द मोर एग्जांपल्स. दिस वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ सी इन द केस ऑफ p ऑर्बिटल. सपोज p ऑर्बिटल यू आर टेकिंग द 4p1 एंड द 4p2. ठीक है, नाउ अगेन फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स. ठीक है, दैट मीन फर्स्ट n इक्वल टू 4. ठीक है, n 4 कैसे आया, क्योंकि हमने कहा था कि जो आपका ऑर्बिटल्स का न्यूमेरस लगा हुआ, दिस इज योर मेन क्वांटम नंबर, या कैन से द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड द सेम थिंग्स n इज 4. सो व्हाट अबाउट n? ठीक है, l हमने कहा था l इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्लियर? एंड द वैल्यू ऑफ l इज n-1. ठीक है, वैल्यू ऑफ L is n-1, but remember now you have the p orbital, and the p orbital, in the case of p orbital the value of L you have 1. ठीक है, कुछ याद आया? देखिए चार्ट फिर से मैं ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए. वैल्यू ऑफ L, here I am making the chart for you. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द वैल्यू ऑफ L. वैल्यू ऑफ L, ठीक है, किसके लिए वैल्यू ऑफ L होगा, डिपेंड ऑर्बिटल्स के लिए. ठीक है, ऑर्बिटल क्या है आपके पास, सपोज यू हैव द S, द वैल्यू ऑफ L इज 0. सपोज यू हैव P, द वैल्यू ऑफ L इज 1. सपोज यू हैव D, वैल्यू ऑफ L इज 2.
Suppose you have F, so value of L is 3. So this is your chart for the value of L. Clear? So you are seeing in the case of p orbital, the value of L is 1. Clear? So I wrote here 1. Now M, ठीक है. अब बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कहां पर आएगा? टू फाइंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. क्लियर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स दैट मीन यू हैव दिस M इज टोटली डिपेंड ऑन L. ठीक है, हमने कहा था दिस M इज डिपेंड टू -L टू +L. ठीक है, एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे काम करना है. नाउ सी दैट द वैल्यू ऑफ L इज 1, सो यू कैन सी द -1 2 +1. Clear? That means the -1 0 and a +1. Clear? Now difficulties arises here. Which value is the exact value of M for 4p1? ठीक है, ड्रॉ करते हैं फिर से. देखिए ये आपके पास था 1 2 3 ऑर्बिटल इन द केस ऑफ P, Px Py Pz, Px Py Pz. ठीक है, वैल्यू पुट अप करिए. -1 0 +1. ठीक है, -1 0 and a +1. These are the values of M for 4p1. ठीक हो गया. Now choose the correct value from here. L equal to 1 आपके पास था. ठीक है, N equal to 4 आपके पास है. आप किसकी बात कर रहे हो? 4p1 की बात कर रहे हो. किसकी बात कर रहे हैं? 4p1 की बात कर रहे हैं आप. ठीक है, तो 4p1 कहां पर आएगा? ये क्या आपके पास? px py pz. ठीक है, 3 आपके पास है px py pz. कहां पे आपका 1 दिखेगा? ठीक है, 1 देखिए कहां पर आएगा आप लोगों का. द सिंपल थिंग्स, 1 कहां पर रखेंगे हम लोग? -1 0 +1, -1 0 +1. 3 और बैटर आपके पास थे. 3 की 3 में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया हम लोगों ने. ये से जो क्वांटम नंबर्स थे वो फिल कर दिया हम लोगों ने. ना चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ M. ठीक, देख लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन आपके पास था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट दिस वन. ठीक है, दैट इज -1. सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ M इज -1 हियर. ठीक है, द वैल्यू ऑफ M इज -1 हियर. इट्स क्लियर नाउ. Now last you have S, that means the spin quantum number. ठीक है, spin you are saying that only one electron is here, so that means the +1/2 you have. Clear? Now see here, in the case of 4p2, clear? 4p2, the N equal to 4. N equal to 4. Now see L. L is again 1. Clear? Because you have the value of L in the case of P is 1. And again you have the M. Find out the M. And you are seeing the second electron. You are talking the second electron. The first electron is here. Second electron is here. For second electron, the value of the value of M is 0. So you have 0 value of M. And again you have the S. You are seeing the second electron. That means this one electron you are talking. So this one here +1/2 again. क्यों +1/2 आया? तो क्या आप पहले इलेक्ट्रॉन क्या फिल कर रहे हैं? 1 2 1 1 2 1. क्लियर? सो हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो +1/2. नाउ सी दैट N equal to 4, N equal to 4 same, L equal to 1, L equal to 1, but here the -1, here is the 0, and the S value will be same. Clear? That means 3 quantum numbers are same, but the 4th quantum number is different. Clear? So this is your Pauli exclusion principle. That means no two electron have the same set of all 4 quantum numbers. ठीक है, 4 के 4 क्वांटम नंबर्स क्या हो सकते हैं? किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट रूल्स का टू फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, रूल्स था आपके पास हुंड्स, मल्टीप्लिसिटी,
a rule. ठीक है, लास्ट रूल इज दैट द Hund's multiplicity rules. ठीक है, नाउ what is the rule? See that clear? The rule is state that the simply that means the multiplicity rule. ठीक है, that means you are filling the electrons in your multiple keys. ठीक है, फर्स्ट रूल रिमेंबर करते हैं कि आपने कहा था बाउर रूल के अंदर द इलेक्ट्रॉन विल बी फिल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल. सेकेंड, द पाउली एक्सक्लूजन, इट स्टेट दैट no two electron have the same set of all four quantum number. Now third, you have the Hund multiplicity rule. ठीक है, that means if you are filling electrons in a particular orbital, so how we fill the electrons in a particular orbital. ठीक है, first of all see that we discuss some terms. The first terms you have degenerate orbitals. ठीक है, degenerate orbitals, या you can say degeneracy. Now see that what the mean of degenerate? Degenerate means that you have, suppose this is your pen and I am cutting this pen in the different parts. Clear? So if I am talking about degenerate orbital, that means that each part have the same length, same breadth. Clear? Same length, same breadth, having the all parts. Clear? Same manner, degenerate orbitals mean that the same shape, same energy and contain सेम इलेक्ट्रॉन. ठीक है, डिजेनरेट ऑर्बिटल मींस क्या होगा? ऐसे ऑर्बिटल्स दोज हैव द सेम शेप, सेम एनर्जी एंड द सेम कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? नाउ सी दैट इन द केस as you have this type of structure, that means S have only one orbital. ठीक है, only one orbital it have. That means in the case of S, this degenerate orbital is not possible. ठीक है, that means degeneracy is not possible. Why? Because S के पास केवल एक ही ऑर्बिटल है, आप इस S के एक ऑर्बिटल को ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है, एक ऑर्बिटल है containing the same energy. Now see the P. In the case the P you have three orbital 1 2 3 px py pz. ठीक है, तो यहां पर डिजेनरेसी पॉसिबल होगा. ठीक है, डिजेनरेसी पॉसिबल है. सेम शेप के होंगे सारे ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंटेन करेगा. एंड वी नो दैट वन ऑर्बिटल इज कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड सेम फॉर D एंड F. D में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 एंड F में कितने हैं? 7. ठीक, सो दिस इज योर डीजेनरेट ऑर्बिटल, यू कैन से डीजेनरेसी. ठीक है, इट्स क्लियर. नाउ व्हाट इज Hund's मल्टीप्लिसिटी रूल? डीजेनरेसी समझ गए हम लोग. तो रूल्स आपसे ये कहता है सिंपली, इफ यू आर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, देन always we fill the first, here you can say the lower orbital, then we'll fill higher orbital. ठीक है, या higher degeneracy state, या you can say the electrons are filled in orbital in unpaired state, and if all orbitals are unpaired, then we fill electron in
पेयर मोड। ठीक है, तो आपसे कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर रहे हैं तो पहले कैसे फिल करेंगे आप लोग, अनपेयर्ड स्टेट में, एंड देन इफ द अनपेयर्ड स्टेट इज कंप्लीटेड देन वी फिल द इलेक्ट्रॉन इन द पेयर स्टेट। सी हाउ दिस योर एस, ठीक है, एस ओनली वन ऑर्बिटल, तो डिजेनरेसी का मतलब ही नहीं होता, दैट मीन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन। नाउ सीइंग द P you are seeing this one you have, that mean फर्स्ट पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने आपने, अनपेयर्ड स्टेट में, दैट मीन लोअर स्टेट 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 P में, वी नो दैट 6। नाउ अनपेयर्ड आपका हो गया क्लियर, नाउ डू इट पेयर 1 2 and 3। This is your Hund multiplicity rule, that means electron fill in any orbital by their unpaired state, and after unpairing will do the pair, that means one orbital, one and each orbital contain the opposite spin of electron। ठीक है, यानी कि 3 ऑर्बिटल आपके पास है 1 2 3, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, अपोजिट। ठीक है, यानी कि द इलेक्ट्रॉन हैव द इक्वल एंड अपोजिट स्पिन। ठीक है, द टर्म्स वी यूज इक्वल एंड द अपोजिट स्पिन। ठीक है, here is +1/2 और here is -1/2, equal and opposite spin contained by one and each orbital। So this is your Hund multiplicity rule। Here the simple rule state that electrons are filled in their unpaired stage, and after unpairation we have the paired stage। ठीक है, फिर क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, ईच एंड वन ऑर्बिटल हैव द इक्वल एंड अपोजिट स्पिन। सो दिस इज योर ऑल 3 रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल्स। नाउ क्लास सी दैट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रूल्स। ठीक है, वी आर टॉकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, नाउ सी दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन वी नो दैट हैविंग द ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा 1s1। ठीक है, आपने कहा था सबसे लोअर एनर्जी का स्टेट कौन सा है, एस होता है हमारे पास, और कैसा इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ओनली 1s1। ठीक है, नाउ सी दैट, और इसके लिए ऑर्बिटल का शेप भी बना सकते हैं आप लोग, दिस इज योर शेप ऑफ एस। ठीक है, या एक ही इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, वी नो दैट, तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज बिलोंग टू एस ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ सी दैट यू हैव द हीलियम, दैट मीन 2, तो हीलियम के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1s2। ठीक है, हमें क्या करना होता है, पेयरिंग करना होता है। ठीक है, तो इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, एस को दे दिए। ठीक है, जब तक एस का नहीं पेयर पूरा होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, दैट मीन एस का एनर्जी लेवल पहले पूरा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहले एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, पहले 1s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर पी के अंदर जाएगा। क्लियर? सो देयर इज 1 electron and the 2 electron. Now start higher atom. Suppose you have carbon 6 electron you have. So firstly 1s2, then we have energy level is 2s2, and again you have the 2p2. ठीक है, दैट मीन एनर्जी का लेवल क्या था, 1s 2s और 2p। हमें ये पता है कि s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैक्सिमम 2 जाएगा, दैट मीन द 2 इलेक्ट्रॉन इन 1s एंड 2 इन 2s, एंड इस p के अंदर कितना जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। याद रखिएगा, p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। दैट मीन जब तक इस p के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हम किसी हायर एटम का या हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकते। ठीक है, लाइक यू हैव द कार्बन, आफ्टर कार्बन यू हैव द नाइट्रोजन and 7। ठीक है, तो राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई एम रीडिंग हियर, you have the 1s2, 2s2 and a 2p, again 2p,
क्योंकि इस 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2p 3, ठीक है। OH 1s2 2s2 2p4, क्लियर। सपोज यू हैव 9, ठीक है, या राइट डायरेक्टली 10, ठीक है, 10 helium neon you have, that means 1s2 2s2 2p6, that means 2 to 4 or 4 or 6 10, ठीक है। This is your electronic configuration of this one, clear। So here is 10 electrons completed, that means the p अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब p के बाद क्या आएगा, आगे बढ़ेगा 3s में, ठीक है। तो देख लेते हैं सोडियम 11, दैट मीन 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये 2p6 क्या हो गया आपका, नियॉन हो गया, एंड देन यू हैव 3s1, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया आपने, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1, तो इसको देंगे आप 3s को देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसका ऐसा दे सकते हैं, यहां तक क्या आपके पास नियॉन, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो नियॉन 3s1, ठीक है। दिस इज अनदर वे टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। सो बिकॉज टिल 2p6 the electronic configuration is belongs to neon, and we know that neon is the inert gases, clear, and 3s1 is the remaining electron. So this is the way to write electronic configuration of different elements with the help of rules called Abbaugh rules, Pauli's rules, and the Hund's rule, clear. So you can write the more electronic configuration, clear, and practice to write electronic configuration